শাস্তির পরিবর্তে শুধু ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট হলে আদালত ও কারাগারের প্রয়োজন কি? নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে এমন অভিমত প্রকাশ করলেন জামাতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি সাদাতুল্লাহ হোসাইনি। শনিবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এভাবেই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন হোসাইনি। যদিও সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার একটি মৌখিক পর্যবেক্ষণে বলেছে যে বিজেপির বরখাস্ত মুখপাত্র নূপুর শর্মা সারা দেশের একটি শ্রেণীর আবেগে আঘাত দিয়েছেন, তাই জাতির কাছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্যের প্রতি সম্মান জানিয়েও নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের দাবি জানায় জামাতে ইসলামী হিন্দ। শনিবার নয়াদিল্লিতে জামাতে ইসলামীর সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফের এই দাবি জানান দেশের অন্যতম এই সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হোসাইনি এবং সহসভাপতি অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সালিম। এ সময় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে হোসাইনি বলেন, শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা চাওয়া হলে দেশে আদালত ও কারাগারের প্রয়োজন নেই। এদিন বিদ্বেষ ছড়ানোর দায়ে দেশের একাংশ রাজনীতিবিদ, টিভি চ্যানেল এবং মিডিয়া হাউসগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় জামাতে ইসলামী। সাদাতুল্লাহ হোসাইনি ও অধ্যাপক সালিমের ভাষ্যমতে উদয়পুর হত্যাকাণ্ড সহ দেশের বিভিন্ন অংশে একাধিক মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রতলামে ভুল পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন বয়স্ক হিন্দুকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো। প্রত্যেকটি ঘটনার চরিত্র এক, এর জন্য কিছু রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়ার ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য দায়ী। সাদাতুল্লাহ হোসাইনি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ধর্মের নিন্দা করে দেশের একাংশ রাজনীতিবিদ যেমন দায়ী, ঠিক সেভাবেই টিভি বিতর্কের নামে এই ধরনের ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচারকারী মিডিয়াও সমানভাবে দায়ী। তিনি বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক, তবে তার চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক হলো এমন বিপর্যয় সৃষ্টি করার পরেও অভিযুক্ত নূপুর শর্মা এবং টিভি অ্যাঙ্কাররা এখনও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টার হোসাইনি বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অবমাননাকারীদের শাস্তির জন্য একটি আইন প্রণয়নের দাবি জানান। দুই জামাত নেতা বলেন, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের আগ্রাসন ঘৃণাকে উৎসাহিত করছে, এতে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং মিডিয়ার একটি অংশ এই ধরনের দায়িত্বহীন রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তাই দেশের সব শান্তি ও ন্যায়প্রিয় নাগরিকদের কাছে ঘৃণা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান হোসাইনি ও ইঞ্জিনিয়ার সালিম। এক প্রশ্নের জবাবে হোসাইনি বলেন, অভিযুক্তদের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে দ্বিমুখী নীতি থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, অল্ট নিউজ ওয়েবসাইটের সহপ্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জুবাইরকে গ্রেফতার করা এবং বিজেপির প্রাক্তন নেত্রী নূপুর শর্মাকে অবাধে চলাফেরা করার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে এই দ্বিমুখী নীতি প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, ঘৃণার প্রচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুই নীতি থাকা উচিত নয়। প্রফেসর সেলিম বলেন, এটা খুবই হতাশাজনক যে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের এক মাস পরেও নূপুর শর্মাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি বলেন, এই বিষয়টি বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিখ্যাত মানবাধিকার কর্মী তিস্তা সিতলাবাদ এবং গুজরাটের প্রাক্তন ডিজিপি আরবি শ্রীকুমারের গ্রেপ্তারে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। তাদের অপরাধ, তারা গুজরাট দাঙ্গার তদন্ত কমিশনের সামনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। প্রফেসর সেলিম আরও বলেন, মোহাম্মদ জুবাইরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ তিনি নূপুর শর্মার অবমাননাকর মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন। এটা নির্দেশ করে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বাক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। তিনি বলেন, নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করার শামিল। সাংবাদিক সম্মেলনে সাদাতুল্লাহ হোসাইনি ও অধ্যাপক সালিমের বক্তব্যে অগ্নিপথ প্রকল্প সহ মহারাষ্ট্রের সরকার পতনের বিষয়টিও স্থান পায়। हाथ में लेना और किसी बेगुनाह का कत्ल करना, इसको हम बहुत ही संगीन जुर्म समझते हैं। इस वाकये की हमने शदीद मजम्मत की है और कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि मुजरिमीन को सजा मिले। हमने डिमांड भी किया है। पहले दिन ही, जिस दिन ये वाकया हुआ उसके दूसरे दिन ही हमने बयान जारी करके मजम्मत की है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि सिर्फ इस एक वाकये तक महदूद नहीं होना चाहिए। मुल्क में ऐसे जितने वाकयात हो रहे हैं आम बेकसूर इंसानों के कत्ल के, हमने प्रेस नोट में भी ये बात लिखी है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। मॉब लिंचिंग के इवेंट्स चलते रहे और उसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश में जो वाकया हुआ कि एक सीनियर बुजुर्ग आदमी को, जो फिजिकली चैलेंज्ड आदमी था, उसको मार दिया गया। और अब ये वाकया, तो ये सारे वाकयात मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है कानून को अपने हाथ में लेने का और हेट का, नफरत का और कत्ल गारतगिरी का, उस माहौल का नतीजा है। तो ऐसे सारे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके अलावा जो लोग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल सलीम साहब से, आपने कहा कि सरकार को जो भी इस तरह के माहौल बिगाड़ता है उस पर ध्यान देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उदयपुर का जो घटना है उसका कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है, जो एक्यूज है उसका लिंक भाजपा से है। 3 साल का मतलब उनके साथ भी रहा है, तो क्या सोचते हैं? बहरहाल जो भी हो, मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी जिसने भी की हो, तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसका पता लगाए
और जो लोग उसके पीछे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। बहरहाल ये बात भी हमने लिखी है इसमें कि ये जो है जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये इन सारे इवेंट्स के खिलाफ बिल्कुल इक्विटेबल कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो किसी खास तरह के वाकयात पर एक अलग तरह का एक्शन लेती है और दूसरे वाकयात पर दूसरी तरह का एक्शन लेती है, बल्कि जो लोग भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है। ओवरऑल आप देख रहे हैं तो एमएसएमई सेक्टर और रिटेल सेक्टर और एग्रेरियन सेक्टर ये बहुत ही क्राइसिस का शिकार है। तो पॉलिसीज का रुख मजमूई तौर पर यही है कि जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और जो छोटे सेक्टर्स हैं उनको बुरी तरीके से डैमेज किया जा रहा है। सबसे अहम चीज जो अभी हमने इसकी तरफ इसमें प्रेस नोट में भी इशारा किया है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जो जल्दबाजी की जा रही है, कोविड के जमाने में भी ये किया गया और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। जो जल्दबाजी की जा रही है उसका भी नतीजा ये निकल रहा है कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। उसके अलावा बजट्स का आप जायजा ले लें, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज का जायजा लें, तो आपको यही महसूस होगा कि जो जिस बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज सेक्टर को और बड़े कारपोरेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, उसके मुकाबले में छोटे सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन सबको नेग्लेक्ट होना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा ये इन अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत तेजी से राइज हो रहा है कि मुल्क में दौलत आ रही है, उसके बावजूद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि ये दौलत सिर्फ बड़े कारपोरेट घरानों तक कॉन्सेंट्रेट। बहरहाल ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाती रहती हैं, उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात अहम है कि ओवरऑल जो मुल्क में माहौल पैदा किया गया है, इसकी तरफ हमने प्रेस नोट में भी इशारा किया है कि ओवरऑल जो माहौल पैदा किया जा रहा है हेट का, नफरत का और पॉलिटिकल जो पूरा मोबिलाइजेशन है वो हेट के अराउंड है। आप हालिया जितने इलेक्शंस हुए उसमें देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि डेवलपमेंटल इश्यूज, लोगों के रोजगार के इश्यूज, पॉलिसीज, इन सब को पीछे कर दिया गया है और इमोटिव इश्यूज, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे की भावनाओं से खेलना, जज्बात से खेलना, मजहबी जज्बात को भड़काना, यही अब हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स की बुनियाद बनती जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस की कोशिशें हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने मुल्क में ये सूरत हाल पैदा की है और इसी सूरत हाल ने सीरीज ऑफ मॉब लिंचिंग इवेंट्स को जन्म दिया है और इसी सूरत हाल ने उदयपुर इवेंट को जन्म दिया है। ये दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। मॉब लिंचिंग के इवेंट और उदयपुर का इवेंट ये स्ट्रांगली रिलेटेड है। ये सब एक ही सिलसिले का हिस्सा है और इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के साथ साथ वो मीडिया हाउसेस जो इस नफरत को फैला रहे हैं। पॉलिटिशियंस को बुलाकर मीडिया स्टूडियोज में गर्मा गर्म डिबेट कराते हैं, नफरत फैलाते हैं, जज्बात को भड़काते हैं, तो ये सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन मीडिया हाउसेस और एंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो इस तरह भावनाओं से खेल रहे हैं और मुल्क को आग और खून में ढकेल रहे हैं। सर, हिंदू और मुस्लिम की जो धार्मिक किताबें हैं सर, संस्कृत में हिंदू की किताबें सारी और जो जी ये बात सही है आपकी कि जो धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, कोर्ट ने भी यही कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये बात कि ये लोग रिलीजियस लोग नहीं है। वो सही बात है कि कोई भी आदमी जो किसी भी मजहब में यकीन रखता है वो इस तरह की कैवेटिक सिचुएशन, इस तरह का फितना फसाद उसको पसंद नहीं कर सकता। तो ये टोटली रिलीजन का मिसयूज है, पॉलिटिकल मिसयूज है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मिसयूज है और इसको मुल्क के सारे धार्मिक लोगों को और सारे संजीदा लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए। इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है सर, नुपुर शर्मा की टिप्पणी जो की गई थी नबी साहब पर, तो पूरी दुनिया में खिलाफत हुई थी, विशेष रूप से खाड़ी देशों से। लेकिन जब उदयपुर की घटना हुई है, खाड़ी देश से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ये चुप्पी दिखाई दे रही है पूरी देश दुनिया में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहरहाल तो खाड़ी देशों से पूछिए। यहाँ तो हम जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे के हैसियत से बैठे हैं और हिंदुस्तान की सारी मुस्लिम जमात ने सबने इसको कंडेम किया है। इसी को नहीं, जब भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, चाहे वो करने वाले इस्लाम का नाम लें या किसी और धर्म का नाम लें, जो भी गलत काम करेगा उसको कंडेम किया जाएगा। सर, ये जी सुप्रीम कोर्ट ने कल नुपुर शर्मा के हवाले से जो रिमार्क्स
और ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका आपने खैर मुकदम किया है। उसने अपने ऑब्जर्वेशन में कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर या किसी और मामले में कोई बात नहीं कही। ये कहा कि उनको टीवी पर आकर माफी मांगना चाहिए देश से। एक बड़े तबके का ख्याल ये है कि नूपुर अगर माफी मांगती है तो उसको माफ कर देना चाहिए, जिसमें मुसलमानों का भी एक क्लास शामिल है। आप गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं उसी के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि मैं समझता हूं कि ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई का। उन्होंने जी एक आखिरी जुमला, क्या ये आपको नहीं लगता कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से मुल्क का मौजूदा कशीदा माहौल और खराब हो सकता है? जी इसी के साथ एक सवाल ऐड कर लेती है। जी अभी आपने कहा कि जो टीवी एंकर जो इंस्टिगेट करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो अगर इसको अमल में लाया जाए तो लगभग 90% टीवी चैनल तो बंद ही हो जाएंगे। तो क्या आप मुतालबा करते हैं कि कुछ हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए टीवी को बंद कर दिया जाए? तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, पहले आपका सवाल, सुप्रीम कोर्ट का की जो कल की कार्रवाई है उसको बाज लोग उस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसने सिर्फ माफी मांगने की बात की। मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी जवाब तलब किया है, पूछा है कि अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। जाहिर है गिरफ्तारी करने का काम तो पुलिस का काम है, कोर्ट तो एक मरहले पे जाके उसका वो देती है। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर सिर्फ माफी से मसाइल हल हो जाएं तो फिर जेलों की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया में सारे जेल बर्खास्त कर दिए जाए। हर मुजरिम माफी मांगेगा, हर मुजरिम माफी मांगेगा। जो भी जिस पे भी आप इल्जाम लगाएंगे किसी भी किस्म का, तो आके माफी मांग लेगा और उसको छोड़ दीजिए। फिर जेलों की और पूरे सिस्टम की क्या जरूरत है? तो अगर आप क्राइम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा देना ये जरूरी है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया है जो कुछ उसने किया है। उसने पूरे मुल्क में नफरत की आग भड़काई है, तो ऐसे जुर्म को सख्त सजा मिलना जरूरी है। अब उससे मुल्क का माहौल खराब नहीं होगा, बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में उससे मदद मिलेगी। आप मुजरिमों के खिलाफ किसी भी किस्म के प्रीजुडाइज से ऊपर उठकर, जानिबदारी से ऊपर उठकर, पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर अगर आप कार्रवाई करेंगे और स्ट्रांगली ये मैसेज देंगे कि हम किसी भी किस्म का क्राइम इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते, सबके लिए लॉ एकसा है, जो भी लॉ का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये स्ट्रांग मैसेज आप देंगे तो लॉ के वायलेशन को रोकेंगे आप। यही तरीका है सारी दुनिया में। तो इससे माहौल क्यों खराब होगा? इससे माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब दूसरा सवाल कि इसके नतीजे में 90% चैनल्स हमारे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? क्या आप ये समझते हैं कि 90% चैनल्स हमारे वो जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं? अगर सब जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं तो बंद होना चाहिए उनको। लेकिन हम समझते हैं कि सब नहीं है। मीडिया में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आप सब लोग भी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और अपनी अच्छी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करने वाले लोग भी हैं, जो शरपसंद हैं, जो मीडिया को, हमारे मुल्क के मीडिया को सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में नफरत की आग भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को लगाम देना जरूरी है। एक सवाल नुपुर शर्मा ने जब धार्मिक भावनाओं को आहत किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर धारा 295 और 153 और 505 लगाई। लेकिन वहीं ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने जब एक फोटो ट्वीट किया तो उन्हें वही धाराएं उन पर भी लगाई गई, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तारी कर दी गई। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जब दोनों ने ही धार्मिक? जी वही हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। आप भी डिमांड कीजिए, आप भी लिखिए इस पे। ये जो डबल स्टैंडर्ड है इस पे आप भी लिखिए और आप भी पब्लिक के सामने लाइए कि ये बिल्कुल गलत हरकत है। जिसने जुर्म किया है और जिसने सारे मुल्क को नफरत की आग में ढकेला है उसको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए और फौरी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल जी। अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि किसी भी घटना के बाद मदरसों को क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं। मदरसों की तालीम से लेकर उसको जोड़ा जाता है, जो भी क्रिमिनल होता है उसमें, कि इसने मदरसे में तालीम पाई है तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या जमात उसमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करेगी? बहरहाल वो तो जहां जरूरत होती है वहां हम करते हैं। हर मसले में उलझा भी नहीं जा सकता। तो अब जाहिर है कि ये बहुत गलत ट्रेंड है कि कुछ वाकया होता है तो इसको बिल्कुल गलत रुख पर लेके चले जाते हैं। वाकये के जो असल फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है और दूसरी बहसें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए शुरू कर दी जाती हैं।
तो जो वाकयात हो रहे हैं उसकी असल जड़ क्या है इसको समझना चाहिए। हम समझते हैं कि असल जड़ यही नफरत का माहौल है और उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है और इस पॉलिटिक्स को मीडिया जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये दो फैक्टर्स हम समझते हैं कि सबसे मेन फैक्टर्स हैं। तो इसी पर ध्यान होना चाहिए और इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की फिक्र होनी चाहिए। बाकी मसाइल जो हो सकते हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन ऐसे वाकयात को गलत रुख देकर और दूसरी तरफ ले जाकर इन असल फैक्टर्स को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ব্যুরো রিপোর্ট তরঙ্গ টিভি বাংলা।